there itself. Now, Bhaktamar helpline phone number. This is the most important feature of this website, where we want a single phone number where people can call on one number and can connect with the multiple healers. So we are planning to allot one number to multiple healers on a different timings based on their availability, and this so that users don't have a conflict. They have to just remember one single number where they can come and connect to all the healers. I think my husband Yash is there. He wants to put some inputs in this particular line, so he'll be. So this helpline phone number, the major purpose is like right now, if anybody in India or outside also, we can see outside India as well, if they have any problem and they want to know more about Bhaktamar Healer, they want to talk about their problems and get some suggestions, and they want to talk to somebody who is an expert on this, who can help them, they can just reach this mobile number and connect to somebody who is experienced in the counseling and who is experienced in giving them information. So this is phone number, like this is even will be helpful for the people who are not very tech savvy. They cannot go through the website and the consume the content there. So this is for even the old age people who are there and they just know how to call. So this is one thing which we are working on as a 24/7 helpline, but maybe initially this might not be required to have 24/7. But yeah, this is one thing where we want, if anybody has a query, wants to connect with the healers, this is where they can go and connect. Yeah. So this is about the helpline. Now, new healers training program, which are run currently already by some particular healers. So we will just list it out here. Anybody list out all the information, the content related to the training program also will be listed here, so that people can come and view from there. And the Bhaktamar success stories, which will have the newsletters daily or weekly or monthly, depending upon the requirement. Where we'll post all the success stories. There are so many testimonies which every day people tell by themselves. They come forward and tell. I mean, from last 2-3 months online. Yeah, Didi, you want to say something? Each one can contribute. क्या कर सकते हैं वो chat box में लिखें. जितने आप 50 IT professionals from Hyderabad high tech city हैं, what each one can do and give suggestion, feedback. We can have group discussions and everything. Right. So yeah. So I mean, in the further slides, so like Shikha has covered most of the major features of the helpline project which we want to do. So in the further slides, we are just going a little bit in detail of these things. So a few things are like, when we connect the healer's profile, we want to collect all the data. So this also will help us to arrange future programs, specialized programs like that. So we want to have one database where all the healers' profile will be there. And then these profile will help us to create programs like teaching programs, Bhaktamar teaching programs, healing programs, and like that. Then this is the slide where we want to say all the information of all the clinics available, so people can reach these clinics if it is there in their local city. Now, online portal. So this is one important portal here. What we want to see is there are a lot of information available on various books, on the various portals, various websites. So, I mean, what we want to do is we want to consolidate all the data into one website, where if somebody has any question related to how, the processor, what should they do in case of any problem, and how they can do the chanting and where are. So everything we want to collect and integrate it in one single platform, where all the YouTube videos, downloadable audios, Anushthan details, and also we want to create a big collection of FAQs, which
can, for the people who are tech savvy, they can go and find their own problems and get, if it is a quick queries, they can get some idea about this. This is one major part of the project which we want to do it here under all-in-one portal. Now, yeah, so these healer appointments and all that, which Shikha has already explained. Query portal is also explained, is like, in case if people have a small queries, they can just post it on a query portal, and available healers can reply. So this will reduce a load on the calling. Helpline phone number, which we already explained, we want one mobile number where people can connect and get help. And the Bhaktama success stories, I mean, this is what this is the new idea which we are thinking, is like to develop this feature as all the success stories, and provide it to people, because once people get to know about the success stories, it motivates them and helps them to analyze their problems, and it pushes them to go extra steps and get help. ये सक्सेस स्टोरी जो अभी आप सुनोगे, हमारे साथ 5-7 हीलर्स हैं. सबसे पहले हम शिखा बोरा जी को लेंगे आफ्टर इनका प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाए. हाँ. So this is the one slide what we are right now working on. This is our short-term plan, where first action item we are planning to create a single helpline phone number, so which we are trying to do it now. The second action item which we are still in the process of collecting the data of the healers. So right now we started with all the most experienced healers. The third one is the all-in-one portal. So this is a big task where we have to collect and collaborate the data which is available on the internet. And this is a big portal where we have started the data collection. I mean, we have to go through various books, PDFs, websites, YouTube links, and everything. And this is collect. So this is one of the major big tasks we have. And the fourth one which we have is the FAQ creation. I think Manju did the same something. ने अपने अपने डेटा भेजना है, सो दैट आप पोर्टल में आ जाओ, आपका फोटो आ जाए, आपका नाम आ जाए, किस सिटी से हैं, कैसे हैं. Yes. So I mean, this what we have said, it's all the work which we are working on. So I mean, we do need support of you guys to get this thing done. We need some technical guys who can help us setting up all these things in the data collection and the helpline setting and technical, so to explain and understand the feasibility of utilizing the existing websites, or working on find the solution on a new system which can be integrated. So we need some technical guys here. So if anybody wants to contribute in our plan, who wants to give some time, volunteer for it, or they have some good contacts in the industry who can help, so you can contact Shikha on this mobile number. So you can on WhatsApp or call as per your convenience. Yeah. Thank you so much everyone for your time. Jajneel, any queries related to do this, you can connect after. Yeah, you can connect afterwards, or we can take it here as per the time guidelines, I think. Sure. Thank you, Shikha ji. Thank you, Shikha Didi. Thank you, Bhaiya. So very nice presentation. It's like these kind of activities that you are doing, it would be really good. And we have got a lot of technical people around, so definitely they would also be very happy. This is the idea to show it here, basically, Manju Didi. Yeah. So Manju Didi, I would request you if you can come. I mean, if you can come to the main session first, and then we can add, like, because let's let's establish the context, and then maybe we can take these things further. So definitely people are very much inclined and very much enthusiastic and happy about it. So if we can, yeah, Manju Didi, over to you. मुंबई शहर को रॉकेट ढेर में तब्दील करने निकला था ना, तेरे इज्जत है पार्टी में
Hello. See the screen, Abhishek? Abhishek? Can you see? Yes, Hello. we are able to see the screen. Yeah. Okay, so I'll start with my presentation. So this is how I started my research work in 2007. I just started with chanting of shlokas with terminally ill cancer patients. So this is a clinical research which I gave presentation in Portugal Psycho-Oncology Congress, then in American Psycho-Oncology Congress, Washington, DC, and then in Dublin, Irish Cancer Society. So this research is like an evaluation of impact of mantra recitation on patients with terminally ill cancer. So Snehanchal Palliative Care Center, which is like a hospice. Hospice is like Samadhi Maran Center, or you can call it palliative care center in medical language, where there is no treatment left. People just go there, they are given rest, they are given morphine drug so that they do not register pain. So their motto is, we cannot cure you, but we can certainly take care of you. So Snehanchal Palliative Care is in Nagpur, opened by Dinshaw Group owner, who is into ice cream, and all products of Amul. They have developed, they took up my research in Amul, and now they have come out with dahi and everything what Amul has. So Dinshaw Group started this as a charity. And you will see this, she's Dr. Mona Rai, who's into palliative care. She opted for going into palliative care. It is very difficult because you cannot see cancer patient in that stage. It is very painful to see their, mouth. It is very painful to see their state. It is so difficult to see them. And with those patients, I started. So this is a group of nurses, if you will see, that is Sister Mary and a team of workers. So the glass partition you see, there are 20 beds. And in those glass partition, each patient is there. And then there is one home care division. So these sisters above with दीदी just to stop you दीदी मैं कह रहा था दीदी if you can I mean आप हिंदी में बोलें क्योंकि बहुत से के पेरेंट्स भी साथ में हैं, they are attending it, तो बहुत अच्छा रहेगा, सभी के लिए लाभान्वित होगा. तो ये जो सिस्टर्स हैं, ये होम केयर में, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है तो ये उसके घर जाएंगी. अगर ये स्नेहांचल पैलिएटिव केयर में नहीं आ सके ट्रीटमेंट को, तो ये सिस्टर्स उनके घर जाके उनको प्रेयर्स करेंगी, मंत्र सुनाएंगी, ऐसे. तो यहीं पे मैंने अपना रिसर्च लिया था. अब ये पर्पस क्या है, इस स्टडी का पर्पस क्या है? So this is a clinical research on drugless therapy. Drugless therapy यूनाइटेड नेशन का मिलेनियम गोल्स है. तो मिलेनियम गोल क्यों बनाना पड़ा? यूनाइटेड नेशन जैसे इतनी बड़ा, जिसके अंडर में पूरे वर्ल्ड के नेशंस आते हैं, उसने ड्रगलेस थेरेपी यानी बिना दवा के कैसे ठीक हो सकते, उसको क्यों बनाना पड़ा? बताओ आप लोग, क्यों बनाना पड़ा? बताइए अभिषेक, क्यों बनाना पड़ा होगा? क्योंकि मतलब हाँ बोलिए. हाँ, मेरे ख्याल से कुछ अल्टरनेट मेडिसिन होना चाहिए और अल्टरनेट वे ऑफ हीलिंग होना चाहिए. देयर शुड ऑलवेज बी होप फॉर हु हैव लॉस्ट द होप बेसिकली. सो मे बी क्योंकि एलोपैथी के बहुत साइड इफेक्ट थे, तो इसलिए उन्होंने. तो अब ड्रगलेस थेरेपी है क्या? ड्रगलेस थेरेपी बिल्कुल ड्रग के समान है. जैसे आप क्रोसिन खाते हो
या कोई भी दवाई लेते हैं या ग्लूकोज की बोतल लेते हो, तो जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो वो बायोसिमिलर होता है, बायोसिमिलर होता, बट द ड्रग डज नॉट हैव फिजिकल फॉर्म, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, गोली नहीं है, बॉटल नहीं है, दिखता नहीं है वो, पर वो इम्पैक्ट उसका वही शरीर पे होता है। और बहुत सारे डॉक्टर्स ने अप्रूव किया है, बहुत लोगों ने पीएचडी किया है कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। जैसे जो आदमी सो रहा था, बाहर ही नहीं जा रहा था, वो समझो खड़ा हो गया। जो आदमी चल नहीं रह सक रहा था वो चलने लगा। जिनके बाल उतर गए थे, वो बाहर किसी से नहीं मिल रहे थे, अब वो खुशी खुशी मिलने लगे। उनका डिप्रेशन चला गया। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेडिकल साइंस क्या बोलती है कि आप कैंसर क्योर कर पाए या नहीं, लेकिन अगर आपने उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर दी, 4 पैरामीटर्स स्टडी करते हैं वो, मैं आगे उसके बारे में बताऊंगी। तो वो एक मेडिकल फ्रैटर्निटी के हिसाब से बहुत बड़ी चीज है। जो अभी हमारे 4 लॉकडाउन में जो हम 5 महीने से क्लास ले रहे हैं, 17 साल से जो बिस्तर में पड़े थे, बोलते कि मृत काया के समय में जी रहा था महावीर जी कोल्हापुर वाले, वो उठ के बैठ गए व्हील चेयर। हमारे पास साथ शोभा बोहरा जी हैं, अभी उनको अनम्यूट करेंगे, मुंबई में। उनके लड़के की फ्रेजाइल बोनसी खड़ा होता था तो टूट जाती थी, और वो लड़का 7 साल बाद खड़ा हुआ। उनकी मम्मी ने त्याग किया, पूरा फल और दही अकेले खाया। और 3 बार मैं बॉम्बे गई और वो इधर आई पूरी ट्रेनिंग लेने, सब कुछ करने। आज उनका बेटा दर्शन खड़ा है और खुद बोलता है एक एक श्लोक। कितना बड़ा अचीवमेंट है। एक न्यू जर्सी में लेडी है जो सनत कुमार जी हैं, जिनकी बहन जो दिगंबर टेम्पल के अध्यक्ष हैं। मतलब फ्रैंकलिन टेम्पल तो सबका है, दिगंबर श्वेतांबर सबका मिलके बहुत बड़ा है, पर एक दिगंबर समाज ने 700 जन ने बनाया। वो एक दिन मुझे बोले, वो रोज आ रहे थे क्लास में, कि दीदी आप हीलिंग दोगे। मैंने सिर्फ एक दिन हीलिंग दी। और फिर हमारे साथ डॉक्टर अर्पणा काले हैं, उन्होंने रोज हीलिंग दी। तो उनकी वाइफ, उनकी बहन जो 6 साल से बिस्तर पे थी, वो वॉकर से चलने लगी और किचन तक जाने लगी। तो इतना फर्क है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम ड्रेडफुल डिजीज। ये साउंड ना आए, डिस्टर्ब करता है। कौन, या तो अभिषेक सबको म्यूट करते हैं। लाइफ सेविंग मैकेनिज्म रेस्टोर। दीदी आप म्यूट हो गए हो। मंजू दीदी आप म्यूट हो गए हो। मंजू दीदी आप म्यूट हो गए हो, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब मुझे फिर से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। जस्ट दीदी अगर वही सेम प्रेजेंटेशन है तो मेरे पास है, ये मैं शेयर कर देती हूँ अगर आपको लग रहा है तो। नहीं ठीक है, कर लूंगी। हाँ ओके। जिन्होंने भी नया ज्वाइन किया है प्लीज अपने आप को म्यूट कर दें, क्योंकि मैं जब म्यूट ऑल कर देता हूं तो मंजू दीदी का भी म्यूट हो जा रहा है। जो भी नए ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज अपने आप को म्यूट कर दें। ठीक है। तो ये जो है लाइफ सेविंग मैकेनिज्म रेस्टोरिंग हेल्थ एंड पीस, और इसका साइड इफेक्ट क्या है? आपको कोई स्कीमों का साइड इफेक्ट, बाल झड़ते, नेल झड़ते, इसका इफेक्ट क्या है? इसका ये होगा कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व बीइंग हो जाओगे, आपको शांति मिलेगी, आपको कंटेंट मिलेगी। तो ये पर्पस इसका ये था कि 45वां श्लोक है जो असाध्य रोगों को दूर करने के लिए है, उस पे हमने रिसर्च किया था कि वो स्तोत्र पढ़ने से हमारे क्या जो कैंसर है वो ठीक हो सकता। तो ये अप्रोच कैसे वर्क करती है? दिस अप्रोच वर्क्स ऑन एंडोजीनियस रिपेयरिंग मैकेनिज्म। शरीर के अंदर एक अपने आप एंडोजीनियस रिपेयरिंग मैकेनिज्म होती है। जैसे अपन स्टेम को कट करते हैं, जो स्टेम सेल थेरेपी है, जो डॉक्टर मातापुरकर को बिल्कुल नोबेल प्राइज मिलने वाला, उन्होंने इस पे काम किया है। तो जैसे हम रोज को कट करते हैं, प्रूनिंग करते हैं,
तो उसका वो कट हो जाता है। शिखा आपके उससे बच्चों की आवाज आ रही है शायद शिखा के। तो वो जो हम कट करते तो रोज अपने आप स्टेम उगने लगती है। तो ऐसे ही जब हमारे बॉडी में वो कहते ओवरी को अगर कट कर दो तो ओवरी अपने आप ग्रो करती, कोई भी पार्ट। तो ये वैसे ही है कि एंडोजीनियस रिपेयरिंग मैकेनिज्म है। जब हम मंत्र पढ़ते हैं भक्तांबर के तो कंप्लीट अगर हमको फेथ होता है, हमको अगर जब विश्वास होगा हम हो जाएंगे इससे, वो विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हम पढ़ते हैं तो वैसे वैसे हमारे हीलिंग मैकेनिज्म हो जाते हैं। और ये कोई झाड़ फूक नहीं है कि मैंने झाड़ दिया, मैंने फूक दिया। हर कोई कहेंगे आप झाड़ दो दीदी, आप बोल दो मंत्र, आप बोल दो। ये कोई भी करेगा, अभिषेक भी अगर किसी के लिए करेगा तो वो असर करेगा, 100% करेगा। क्योंकि लाखों करोड़ों जन ने शुरू से पढ़े हैं, सदियों से पढ़े हैं। कितनी माता बहनें अभी तक भोजन नहीं लेती जब तक भक्तांबर नहीं पढ़े। तो ये कोई मैजिक ड्रग एक्ट में भी नहीं आता है कि हमने झाड़ फूक कर दिया। दिस इज वी आर एम्पावरिंग यू। जिनको भी हम सिखा रहे हैं, जिनको भी हम एक बार इनिशिएट कर देते हैं, ध्यान में ले जाते, मंत्र सिखा देते, वो उतना पावरफुल हीलर बन जाता है कि वो किसी को भी हीलिंग देता है तो वो हीलिंग इफेक्टिव हो जाती है। हम सिर्फ एम्पावरमेंट करते, मैं उनका अंदर का वो जगाती हूँ, उनको इनिशिएशन करती हूँ, दैट इज ऑल। फिर उसके अंदर खुद वो पावर्स आ जाते। तो दिस इज मैजिक ड्रग एक्ट में भी नहीं आता। फिर उन्होंने कहा आप एफडीए से अप्रूवल ले लो जिन डॉक्टर्स के पास। तो मैं दिल्ली अपने फादर के साथ, क्योंकि मेरे फादर मेडिकल के प्रेसिडेंट रहे यूनानिमसली 2 साल, उन्हीं ने बजट पूरे पास करते, तो वो मुझे एफडीए के पास ले गए। तो एफडीए मेरे से बोलती फूड एंड ड्रग एक्ट। अमेरिकन फूड एंड ड्रग एक्ट भी हमारे जो हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ सेंट्रल कैंसर इंस्टीट्यूट में, वो पूरा ऑडिट करने आते हो। वो हर बार बोलते हु इज डॉक्टर मंजू जैन, स्पिरिचुअल हीलर, कैसे वर्क करते, मंत्रा कैसे करते, दे वांट टू स्टडी। तो जो एफडीए है उसने मेरे से कहा क्या कोई आप गोली दे रहे हैं? मैंने कहा नहीं। बोले क्या कोई आप इंजेक्शन दे रहे हैं, इंट्रावेनसली दे रहे हैं? मैंने कहा नहीं। तो करते क्या हो? मैंने कहा मैं बस 15 मिनट पढ़ती हूँ पेशेंट के साथ, और उस श्लोक पढ़ती हूँ और उसकी वाइफ को मंत्र दे देती हूँ और उसका असर हो जाता। तो अब ये 45वां श्लोक है जो आप देख रहे हो, उसमें पिक्चर दिखाई है कि वो व्यक्ति जिसका पेट फूल गया है पूरा, उसको लिवर का सिरोसिस हुआ है और उसका पेट फूल गया, उसमें पूरा पानी भर गया है, और डॉक्टर यानी वैद्य पुराने जमाने के कह रहे हैं कि अब कोई भी इलाज नहीं रह गया, आपके पास कोई भी इलाज नहीं रह गया। और उसकी पत्नी और बच्चा जो साथ में खड़ा, उनने भी मान लिया कि अब ये नहीं बचेंगे। और वो व्यक्ति ये मंत्र पढ़ के कैसा बन गया? ये जो ऊपर आदमी खड़ा है दुबला पतला कामदेव समान सुंदर बन गया। उसका पेट पूरा अंदर चला गया, उसका पूरा पानी सूख गया। हमारे साथ हमेशा एक अग्रकर मैडम रहती हैं अमरावती का, उनका यही जलोदर रोग था, पेट पूरा फूल गया था और वो कर रही थी और अभी ठीक हो गए। 8 साल से जुड़ी हैं वो हमारे साथ। एक और कैलकाटा में एक लेडी थी जिसका पेट फूल गया था और उसका बेटा, शायद अभिषेक ही नाम था उसका, उसने सिर्फ 11 दिन 11 बार पढ़ा है। वो बोलता है कि दीदी उनके पेट में सल पड़ने लगी, गुड़ी पड़ने लगी ऐसे। तो ये 45वां श्लोक है और इसमें दिया है कि जो असाध्य रोग है, मतलब डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि जो ओवेरियन कैंसर है उनके लास्ट स्टेज में पानी भर जाता। वो कहते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें लास्ट स्टेज में पानी भर जाता, लिवर कैंसर है, कोई भी जो डिजीज ड्रेडफुल रहती है उसमें लास्ट में पानी भर जाता। और जब डॉक्टर ने मुझे सर्टिफिकेट दिया था, एक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की पेशेंट थी जो कंचन, जिसको हॉस्पिस में ही वहां पे, शिखा आप बंद कर लो ना ये आवाज, जो भी जन है म्यूट कर ले। दीदी मेरा अनम्यूट ही है, अभी मैंने म्यूट किया है मैं, और ये है किसी का मैं। हाँ क्योंकि बच्चों की आवाज आती है। हाँ म्यूट कर ले। तो वो आपको डिस्टर्ब करता है। तो जो भी जन इसको मन से पढ़ेगा, तो मैंने ये लड़की को देखा था हॉस्पिस में, और मैं ऐसे ही देखी कि 13 साल की लड़की ऐसे हॉस्पिस में क्यों? हॉस्पिस में तो
बूढ़े लोग रहते जो मृत्यु को जाते रहते, क्योंकि वहां मोक्ष धाम से गाड़ी खड़ी रहती हमेशा, फिर डेथ हो रही, फिर डेथ हो रही रोज एक, क्योंकि वही केसेस रहते जिनकी कीमो रेडिएशन सब कुछ हो गए, जब उनके सिर के बाल भी चले गए, जेब भी पूरे खाली हो गए, उसके बाद डॉक्टर कह देते कि अब कोई इलाज नहीं है, तो फिर वो लोग स्नेहांचल पैलिएटिव केयर में आ जाते, क्योंकि वहां फ्री ट्रीटमेंट है, और वहां पे वो कहते हैं वी कैन नॉट केयर यू बट वी कैन टेक केयर ऑफ यू, समाधि मरण जैसे। तो वहां मैं हर पेशेंट को सुनाती थी, और मैंने 20 पेशेंट लिए थे जिनको मैं मंत्र देने वाली थी, रोज पढ़ाती थी, और ऐसे 20 फिर अगले 21 दिन में 20 पेशेंट जो बिना मंत्र वाले थे। और जब हमने उनको कंपेयर किया तो जिनको मंत्र दिया था वो काफी लंबे समय तक जिए। अभी बताती हूँ, जब मैं सोच के जा रही थी, ऐसे सोच रही थी कि मैं कैसे अमेरिका में प्रेजेंटेशन दूंगी, और मैं सोच रही थी मुझे क्या पागलपन चढ़ गया, जब डॉक्टर भी कह रहे वो नहीं बचेगा, उनके पत्नी बच्चे ने भी मान लिया नहीं बचेगा, और मैं क्यों पीछे पड़ी हूँ सब कुछ अपना फैक्ट्री घर छोड़ के कि नहीं वो बच जाएगा, नहीं उस पर असर होगा। तो मैं से बड़े हताश उससे जा रही थी वहीं पे स्नेहांचल पैलिएटिव केयर, ये सोचते हुए कि मैं अमेरिका में ऐसे 1000 डॉक्टर के बीच में बताऊंगी कैसे कि ये मंत्र काम करता। और जैसे ही मैं हॉस्पिस गई तो ये सिस्टर मैरी जिसको मैंने दिखाया, ये कभी बाहर नहीं बैठी रहती, ये अंदर रहती, इतना काम रहता है, ये बाहर बैठी थी। तो मैंने कहा सिस्टर व्हाई आर यू सिटिंग आउट, आप बाहर क्यों बैठे? तो वो कहती है अंदर कोई नहीं है, सिर्फ 3 पेशेंट है। मैंने कहा कहाँ गए सब? बोले सब अपने घर गए। मैं बोली घर गए? बोले हाँ। मैंने कहा अभिषेक जी जी दीदी एक मिनट, कोई ज्वाइन कर लेता है और वो दोबारा वो हो जाता है। दीदी आप अपने आप को फिर से अनम्यूट कर लीजिएगा, मैं सबको म्यूट ऑल कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सबको म्यूट ऑल कर दिया है। मंजू दीदी अनम्यूट कर रही हूँ, हाँ ठीक है ठीक है। तो वो स्क्रीन आ गई, हाँ। उनकी आवाज में हाँ बस एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर आपको दिख जाएगा। हाँ तो ये सिस्टर मेरी बाहर बैठी थी, तो मैंने कहा कहाँ गए सारे पेशेंट? तो वो बोले कि वो तो सब अपने घर गए। अब आप सोचो वो पेशेंट जो डेथ बेड पे था वो 15 मिनट दूर गया, अपने उनका ट्रीटमेंट चेकअप कराया, रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट 15 मिनट दूर है, और वहां से वो घर चला गया। तो मंत्रा रेसिटेशन में क्या क्या होता है? जब आप मंत्रा रेसिटेशन करते हो तो एंडोजीनियस रिपेयरिंग मैकेनिज्म होती, कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होती है जो अपने आप हीलिंग करती है। और ये प्रूवन है, डॉक्टर रिंग सिंह ने पहले ही बताया है कि जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो हमारा जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पे थर्ड आई चक्र, वहां पे पाइनियल ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, और वो सिक्रीट करना चालू करते हैं मेलाटोनिन, जो एंटी कार्सिनोजेनिक हो जाती है, जो ट्यूमर के साइज छोटे कर देती है। और अभी हमारे 8 दिन में एक लेडी का कान के पीछे का ट्यूमर ठीक हुआ, जो आपके अंदर भी हीलिंग कर देती है। जिनके अल्सर्स थे पेट में वो 4 दिन में ठीक हुए। किसी के फ्रोजन शोल्डर था, वो सिद्धार्थन के क्लास में आया, उनका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो गया। तो फिर वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, आपके इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। फिर सेराटोनिन रिलीज होती है, सेराटोनिन जो आपके
शरीर को हमेशा बताती है कि आप स्वस्थ हो, आपके अंदर स्फूर्ति का संचार हो रहा, आप एक एक सेल आपका रीजवनेट होता है। तो पहले भी साउंड हीलिंग पे बहुत लोगों ने काम की। जब हम रिसर्च लेते हैं तो हम ये एक साइंटिफिक पैटर्न है कि किन स्टेज का लिया। फर्स्ट स्टेज के कैंसर पेशेंट 5% डायग्नोज होते, सेकंड स्टेज के 5 से 6 साल जीते, थर्ड स्टेज के 5 से 6 महीने, और फोर्थ स्टेज में से 5% जाते स्नेहांचल पेलिएटिव केयर में, क्योंकि वो टर्मिनली इल के लिए समाधि मरण जैसे। उनमें से 40 पेशेंट लिए, 20 को मंत्र दिया, 20 को नहीं दिया। तो इनमें हमने 4 चीजें स्टडी करी। पार्ट्स डील विथ एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, कि भाई वो चल नहीं सक रहा था तो चलने लगा, वो खाना नहीं खा सक रहा था खाने लगा। पेन रिलीफ, पेन कितना था उनको, पहले कितना था, फिर 21 दिन बाद कितना था। फिर मेंटल स्कोरिंग सिस्टम, बिहेवियर, लाइफस्टाइल, उनके लाइफस्टाइल में क्या फर्क पड़ा, उनका लाइफस्टाइल कैसे अच्छा हुआ। फिर ओवरऑल सिम्टम्स हेल्थ के फटीग कितनी कम हुई, उनकी थकान थी तो वो कम हुई। तो ये एक साइंटिफिक पैटर्न है कि दोनों ग्रुप को अगर हमें कंपेयर करना रहता तो वो एज के बेसिस पे सेम होना चाहिए, फिर सेक्स के बेसिस पे सेम होना चाहिए। तो जो उनका हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और ये एक चार्ट होता जिससे करा तो नेग्लिजिबल आ रहा था 0.07, यानी वो ग्रुप्स कंपेरेबल थे। सेक्स के बेस पे फीमेल है तो फीमेल, इनकम ग्रुप, अब कोई बहुत रईस है तो वो कीमो लेगा, कोई नहीं लेगा। और स्नेहांचल पेलिएटिव केयर में सब गरीब लोग ज्यादा आते। जिंदगी में एक ही जन देखा था जो 28-30 लाख लेके टाटा मेमोरियल में इलाज कराए थे, जब कोई इलाज बाकी नहीं रह गया तो वो आए थे। तो अब इसका डोज कैसा है कि 21 डेज की 1 साइकिल है भक्तांबर के श्लोक पढ़ने की। इंटरवेंशनल डोज क्या है कि 9 बार आपको श्लोक पढ़ना है, 45वां। इंक्लूसिव क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी तरह की बीमारी। एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया क्या है, कौन इसके अंदर नहीं आता, जिनको विश्वास नहीं है उस थेरेपी पे तो वो उस ढंग से काम नहीं करेगा। जैसा जो विश्वास वाला है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कोई बोलता मैं 3 महीने से पढ़ रहा पर मुझे ज्यादा असर नहीं हुआ, तो उसको विश्वास में कमी है। वो आज भी अस्पताल के दर दर ठोकरें खा रहे हैं, जाके अस्पताल जा रहे हैं। तो फिजिकल स्पिरिचुअली इवॉल्व इसमें कौन लगता है, जो अगर मेडिकल डॉक्टर्स जो अगर थोड़े से अध्यात्म से जुड़े हैं उनके साथ अगर हम लोग रिसर्च लेते हैं, क्योंकि उनको बिलीव है कि मंत्र काम करता, भगवान जो अच्छा डॉक्टर होगा वो हमेशा कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले ने किया है। तो वैसे ही नर्सेस होंगी, वैसे ही हीलर्स भी जो अध्यात्म से जुड़े होंगे, जिनको पैसों से अटैचमेंट नहीं होगा, वो ही आगे बढ़ेंगे और उनकी हीलिंग इफेक्टिव होगी। जो पैसे में लगेगा तो वो पेशेंट का विश्वास भी थोड़ा कम हो जाता है। और आपने पैसा ले लिया, आपने अगर पैसा नहीं लिया तो वो व्यक्ति सारी उम्र आपका हो जाता। मैंने एक ही चीज देखी कि मैंने जिसको भी हीलिंग दिया, जिसको भी जोड़ा, ट्रेनिंग दिया, वो खुद ही समर्पित हो गया। वो अपना खुद, आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद अपना जो भी है पैसा उसी में लगा रहा है। भक्तांबर के कार्ड बना रहा तो भक्तांबर का ये बना रहा, तो हीलिंग दे रहा, वो दे रहा। वो अपने आप भगवान करते, जैसे जैसे आप पैसा छोड़ते हो वैसे वैसे वो आगे बढ़ता है। तो जो पेशेंट पढ़ रहे थे उनके +95 आए इस चार्ट में, और जो नहीं पढ़ रहे थे -98। 7 उसमें से बचे 40 में टर्मिनली इल, जो डेथ पे थे, समाधि मरण में बिल्कुल। और उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ +13.57। ये जो रिसर्च है ये पूरे वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनर जो रहता है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इस पे 3000 रिसर्च हो गई, ये 90 लैंग्वेजेस में है, और इसकी सेंसिटिविटी इंडिया में भी है। तो ये टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जिनके साथ हमने काम किया। ये अभिषेक वैद्य हैं, ऑन्को सर्जन टाटा मेमोरियल में। ये मेरे मेन डॉक्टर हैं अजय मेहता सर, जिनको मैं क्रेडिट दूंगी, नॉन जैन होके, पंजाबी होके। इन्होंने मुझे कैंसर इंस्टीट्यूट में रोज ओटी के दौरान चैंटिंग करने दिया, और इन्हीं ने सर्टिफिकेट दिया कि ये भक्तांबर से क्योर हो सकता। जब इन्होंने पूछा कि ये कब लिखा गया था तो मैंने कहा 700 BC में। तो ये कहने लगे कैंसर उस समय
डायग्नोज हो गया था, उस समय मेरे पास कोई आंसर नहीं था। पर जब एक पेट फूला आदमी बैठा था और मैंने पूछा सर इनको क्या हुआ, बोले लिवर कैंसर। फिर बाद में बोले हिंदी में इसको जलोदर कहते हैं। तो मैंने कहा वो मानतुंगाचार्य जी तो कितने 700 BC में कह गए कि ये उद्भूत भीषण जलोदर का रोग है। तो ये 4 पैरामीटर्स हर किसी को स्टडी करना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका कैसे इम्प्रूव होता है भक्तांबर पढ़ने से। विजुअल एनालॉगस स्केल पे पेन जो था, जो स्केल उसका होता वो 7 से 2 पे आ गया था, यानी 5 पॉइंट उतर आया था, 50% पेन कम हो गया था। इमोशनल स्टेबिलिटी, जो भय रहता कि कोविड हमको मार तो नहीं देगा, डर, वो भय निकल जाता। और आप स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो जाता कि आप अपनी बॉडी से डिटैच हो जाते हो, आप अपनी फैमिली को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रेडी हो जाते। वो जो रेडी हो जाता मृत्यु के लिए, मृत्यु उसके पास आती ही नहीं है, वो खुद ही डर के भय से भग जाती है, वो कभी आपको वो नहीं करेगी। और जब आप ये पढ़ते हो पॉजिटिविटी आती चैंटिंग से, सेरोटोनिन देती है मैसेज वेलबीइंग का। फिर चैंटिंग एक्सेलरेट करती है आपके न्यूरोपेप्टाइड्स को, इंटर्न हार्मोन्स को प्रोटेक्ट करती है, reactive. Possibly it may boost your immune system. Recitation also inhibits cancerous cell metabolism. उनकी मेटाबॉलिज्म भी वो करती है। तो ये पहले जिन लोगों ने रिसर्च करी है मंत्रास पे, म्यूजिक एज थेरेपी, जॉनथन, ये सब वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स हैं। ये डॉक्टर अजय मेहता ने सर्टिफिकेट दिया मुझे, देखो क्या लिखा है उन्हें। दिस इज टू सर्टिफाई डॉक्टर मंजू संदीप जैन वर्किंग इन कैंसर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट एज स्पिरिचुअल रीलर। शी काउंसल्स कैंसर पेशेंट प्री ऑपरेटिवली, ऑपरेशन के पहले, ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी जब चल रही तब मंत्र पढ़ते, एंड पोस्ट ऑपरेटिव, बाद में पीरियड जब ऑपरेशन हो गया, थ्रू मंत्रा हीलिंग ऑफ भक्तांबर टेक्निक 45th श्लोक, क्योर फॉर इनक्योरेबल, इज डूइंग स्पिरिचुअल हीलिंग फॉर लास्ट 3 years। ये 2000 उन्होंने मुझे 9 में दिया था, फॉर 3 years। उसके पहले वो बता रहे कि 3 साल से स्नेहांचल पेलिएटिव केयर में मैं रोज जा रही थी उन पेशेंट को सुनाने मंत्र। Patients have benefited by this technique and it has strengthened their mental and physical health and helped early recovery. I recommend spiritual healing as complementary therapy, showing amazingness. ये उनकी वाइफ है डॉक्टर सुचित्रा मेहता, जो साइको ऑन्कोलॉजिस्ट है और ये डीन है सब मेडिकल कॉलेज के। और इनके साथ हमने ये स्टडी पोर्चुगल में लेके गए। ये सब केस स्टडीज हैं, किन किन की आवाज वापस आई, जो 1 महीने से बोल नहीं रहे थे, वो सिर्फ मन में भक्तांबर पढ़े और उसकी आवाज वापस आ गई। अब ये देखिए 71 साल के आदमी ये जो है, ये कैंसर पेशेंट थे, पान वाला शॉप। मैंने उस समय में बस था नहीं, मैंने लिख के हाथ से दिया, इन्होंने सिर्फ रास्ते में पढ़ा, मैं कैंसर इंस्टीट्यूट ले गई, उसी दिन इनको एडमिशन मिल गया। पूरी सर्जरी के दौरान ये मैं पढ़ रही हूँ, देखो मैं खुद पढ़ रही हूँ श्लोक, इतने आसान से उनकी वो हुई, उनको कीमो भी नहीं लगी, रेडिएशन भी नहीं लगी, और 15 दिन भी नहीं लगे, 10 दिन में रायल्स ट्यूब भी निकल गया और घर पहुंच गए। डॉक्टर कहते ये मिनिमम कम से कम 3 महीने लगते थे, पर मंत्र के, वो नॉन जैन थे, पर उन्होंने कहा था दीदी मैं तो पान भी नहीं छोड़ूंगा और मैं पान से ही जीविका कमाया हूँ। और वहीं पे एक 38 साल का यंग लड़का था जिसकी कीमो और सब चल रही थी, और उसकी मेरे सामने आयु पूर्ण हो गई, कीमो ले लेके डिग्रेशन। लोगों को लगता कोई चीज महंगी है तो जल्दी काम। ये कंचन जो मैं बता रही थी कि 13 साल की लड़की, जिसका केस देख के सर ने कहा था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, वो रोज सर्जरी भी नहीं कर रहे थे, और वहां स्नेहांचल पेलिएटिव केयर से मैं इसको उठा के लाई, इसकी मम्मी को मंत्र दिया, उसके पापा को यंत्र दिया, उसने किया तो उसका जो प्लेटलेट 4000 था वो 37,000 हो गया 15 दिन में, और उसका हीमोग्लोबिन 2 से 11 आ गया। और फिर वो कहने लगी कि मुझे अपने गांव जाना है, उसको गांव भेजा, मेरा ड्राइवर लेके गया, वहां पे भी वो रह रही थी, और उसका वहां तो कोई ब्लड नहीं दिया जा रहा था, वहां वो दिवाली पे रही तो उसका 70,000 प्लेटलेट आ गया, जो सिर्फ मंत्र पढ़ रही थी और उसके पिताजी अभिषेक कर रहे। वापस आई, और फिर उसके बाद क्योंकि लिम्फोब्लास्टिक लिक्विड डिटोरिएट हो रही थी, डिटोरिएट,
और उसकी जैसे ही सर्जरी सर के लिए मैं बोल रही कि सर टारगेटेड कीमो मत करो, उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, बिस्किट तक मैं लाती, मैंने 1-1.5 लाख इकट्ठा किया था उससे, उसका सब सर्जरी और ये, तो वो जब डॉक्टर हाई नहीं कर रहे थे उसकी सर्जरी को, 6 दिन तक मैं लगातार गई, 6वें दिन वो बोले टेबल पे मर जाएगी, टेबल पे मर जाएगी। और जैसे ही मैंने 7वें दिन गई तो सर ने हाथ मिलाया मेरे से, बोले चलो अच्छा करता हूँ, तुम मंत्र पढ़ना। और उसकी सर्जरी के बाद उसके 37 स्टेपलर के स्टिचेस आए, 37, इतनी सी लड़की। और दूसरे दिन आईसीयू में मैं गई, उसको मंत्र जल्दी और सर आए, तो बाकी आईसीयू में 7 स्टिचेस ये आड़े टेढ़े डले, और ये कहती डॉक्टर साहब पार्ले जी बिस्किट चाहिए। तो सर उसको छोड़ के कहते कमाल करते हो, और फिर उन्होंने वो सर्टिफिकेट लिखा। इतने बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट जिसकी ब्रेस्ट कैंसर पे पूरे वर्ल्ड के हर मेडिकल कॉलेज में उनकी बुक चलती है, और उनको पूरे बेल्जियम से एड आती है पूरे रिसर्च की, हर सेप्टिन ड्रग में उनके एथिकल बोर्ड में हूँ, हमने वो पूरे पास करे। और ये रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, ये सब हमारी टीम है, डॉक्टर सारा, ये एक कैंसर सर्वाइवर है जो मंजरी जोशी, वो काम कर रही, ये डीन है रीजनल। यहाँ हम लोग रेगुलर काम करे हैं कई साल जो कैंसर पेशेंट पे। तो मैं इसके साथ चाहूंगी कि हमारे साथ जो लोग हैं उनको मैं जोड़ना चाहूंगी। हमारे एक एक केस स्टडी आप सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबसे पहले हमारी शोभा बोहरा जी, जिन्होंने बहुत त्याग करके, जिन्होंने बहुत कुछ जिनका बेटा 7 साल बाद चला है, तो उनका सुनेंगे, और अगर उनका बेटा साथ में होगा तो उसको साथ में लेंगे। तो शोभा बोहरा जी को मैं स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ और अनम्यूट कर रही हूँ। आपने मुझे को होस्ट बना दिया ना? हाँ दीदी मैं कर दे रही हूँ। करिए। हाँ शोभा जी मैंने अनम्यूट कर भेजा, आप अनम्यूट हो जाइए, मैं स्पॉटलाइट पे और उनको स्पॉटलाइट पे लीजिए। और एक बार वीडियो अपना स्टार्ट कर दीजिए तो स्पॉटलाइट पे आ जाओगे आप। तो अभिषेक अब आप लाइव केस स्टडीज देखोगे, सक्सेस स्टोरीज, किस किस को क्या मिला है सब लोग देखेंगे। एक सक्सेस स्टोरी जो ट्रू फैक्ट होता उससे इतना असर होता जितना किसी से नहीं होगा, शास्त्रों पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पर ये ट्रू स्टोरीज। तो शोभा बेहरा जी स्पॉटलाइट पे नहीं आए? हाँ हाँ स्पॉटलाइट कर दीजिए। हाँ शोभा जी। जय जिनेंद्र। हाँ मुद्रा आपकी बहुत बहुत तपस्या की। हाँ जी, जोर से बोलिए शोभा जी। और दर्शन भी माइक आसपास हो, एडजस्ट कर लीजिए। दर्शन भी आसपास हो तो उसको भी दिखा देना। हाँ ठीक है, आप बताइए पहले फिर। ठीक है। बेटे को ब्रिटल बोन डिजीज है, जिसमें उसका 20 से 25 फ्रैक्चर हुए उसको। अभी 15 साल का है वो, उसको 25 फ्रैक्चर हुए और उसके 10 सर्जरीज हुए लिख के। तो उसको बार बार फ्रैक्चर हो जाता है। माइक एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। ओके सुनाई दे रहा है, वैसे सुनाई दे रहा है। भी आ रही दीदी आवाज? हाँ एकदम बढ़िया। हेलो। हाँ बहुत बढ़िया आ रही। तो बार बार उसको फ्रैक्चर हो जाते थे और बोन कर्व हो जाते थे, उसमें सर्जरी करके बोन के अंदर रॉड डालते थे। तो 2005 में ऐसे 5 सर्जरी हुए और अभी 2018 से 4 सर्जरी हुए अभी। तो उसके बोन अभी स्ट्रेट हो गए और कम से कम 7-8 साल बाद में अभी वो 15-20 दिन पहले 10 मिनट के लिए खड़ा रहा। तो मैं 3 साल से मंजू दीदी से जब से मिली हूँ तब से रोज भक्तामर करती हूँ, और मेरा बेटा भी 9 बार मंत्र पढ़ता है, श्लोक और मंत्र दीदी 9 बार करता है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि भक्तामर के स्त्रोत काम करते हैं, और ये मैंने खुद ने मुझे रिजल्ट मिले हुए। पहले तो इम्प्लांट नहीं मिल रहे थे हमको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं मिल रही थी बाहर से इम्प्लांट मंगाने की। और जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने किया भक्तामर तो मेरे को 8 दिन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मिल गई थी इम्प्लांट मंगाने के लिए। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मेरा बेटा खड़ा हो गया, उससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं है। तो भगवान के आशीर्वाद से और मंजू दीदी की कृपा से
आज दर्शन खड़ा है। और मंजू दीदी जो पूरे विश्व में भक्तामर का प्रचार कर रही है, मैं तो ये कहूंगी कि मानतुंगाचार्य जी ने तो भक्तामर की रचना की थी, और मंजू दीदी एक ऐसी मानतुंगाचार्य है हमारे लिए जिन्होंने भक्तामर को पूरे विश्व के जन जन के मन मन में पहुंचाया है दीदी। थैंक यू दीदी। देखो मैं इनका बताऊं, शोभा बोहरा जी का, कि इनको पूर्ण विश्वास था। ये कहती थी कि दीदी दर्शन आपके घर चल के आएगा। और ये 3 बार, मैं तो बॉम्बे गई थी और वो दर्शन ने कहाँ से व्हाट्सएप पे देख लिया कि मंजू दीदी का घाट ऊपर में प्रोग्राम है। उसने इनको भेजा कि आप लेके आओ। ये आई मुझे लेने और हम पहुंच गए इनके घर, और उसी दिन उसका बर्थडे था। और 3 बार, मैं तीनों बार बॉम्बे प्रोग्राम गई और ये कहीं से भी ढूंढ के मुझे लेने आ जाए और घर ले जाए, और फिर ये एयरपोर्ट छोड़ने आए। एक बार प्रभात जी मुंबई लेके गए इनके घर और वो दर्शन खड़ा हो गया। मतलब अमेजिंग। वो कहता था मैं आपकी पोर्ट्रेट बनाऊंगा। तो इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है जिसको डॉक्टर्स गिव अप कर चुके थे सब कुछ, और आज दर्शन खड़ा होने लगा 15-15 मिनट। आप देखोगे तो इनके वीडियो देखना मेरे YouTube पे। तो अब मैं ले रही हूँ शिखा। अब आप इनको लीजिएगा, प्रीति लखियानी जी को। जी दीदी, प्रीति इसकी डबल लखियानी जी। डिवाइस ऑन है इसलिए ये ऐसे आ रहा है दीदी। प्रीति नहीं, करके है। हाँ, प्रीति लखियानी जी को लीजिए, मद्रास से हैं, जिन्होंने फर्स्ट भक्तांबर क्लिनिक खोला था। फर्स्ट दीदी। भक्तांबर क्लिनिक। हाँ प्रीति जी आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है। स्पॉटलाइट पे ले लीजिए प्रीति जी। जी दीदी, वो वीडियो ऑन करें एक बार। प्रीति जी आप वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज और अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, वीडियो बाद में ऑन करेंगे, पर अनम्यूट कर लीजिए प्रीति जी एक बार। हाँ, ये अनम्यूट हो गई दीदी, वीडियो नहीं ऑन हो रहा है इनका। प्रीति जी, प्रीति जी नहीं आ पा रही तो अपर्णा जैन काले को ले लो। जी दीदी, अपर्णा दीदी तो थी, अपर्णा दीदी को मैंने देखा था। हाँ, अभी ये जो मैं न्यू जर्सी का केस बता रही हूँ, वो अपर्णा जैन ने मेन ठीक किया है। मैं तो सिर्फ एक बार करी हूँ, बाकी अपर्णा ने मेहनत करी है दिन रात। अपर्णा दीदी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अभी स्टार्टिंग में तो थी अपर्णा दीदी, मैंने अनम्यूट करने के लिए बोला है उन्हें। तो दीदी उनका वीडियो भी ऑन नहीं है, वो अनम्यूट भी नहीं हो रही है। चलो, हमारे साथ मधु जी हैं कैलकाटा से, जयवन जी भी हैं हमारे साथ। जयवन जी को ले लीजिएगा। जयवन जी हैं हमारे साथ, जो जयवन जी बताएंगे। जयविन भैया है। हाँ हाँ, ये दीदी आ जयविन भैया। जय जिनेन जयविन भैया। जय जिनेन जय भक्तामर। जय भक्तामर। बोलिए जी बताइए, भक्तांबर के अपने एक्सपीरियंस सब कुछ बताइए। अभी वो लड़की जो टॉर्नेडो आया था वो बताइए। टॉर्नेडो तो कितना 4 साल पुरानी बात हो गई, 2016 की बात है वो। खैर, यूएसए मैनचेस्टर में टोरंटो आया तो उन्होंने फोन किया तो उनको 44th हादसा दी थी, और सारे बगल का पेड़, बड़ा सारा पेड़ उखड़ गया पूरे मैनचेस्टर में, मतलब जगह जगह तबाही हुई थी। वो सारे फोटो उन्होंने भेजे, पर उनके घर में ना उनकी लड़की ना उनके फादर मदर किसी का बाल भी बांका हुआ। उनके 3-4 वीडियो उन्होंने मुझे बार बार भेजे, उन्होंने अलग अलग, कभी माँ का, कभी बेटे का, कभी दोनों जनों का, माँ बेटी का, ऐसे 3-4 वीडियो उन्होंने भेजे मुझे। और इतने खुश थे, बच्ची भी अच्छे नंबरों से पास हुई और वो भी छठा श्लोक करती थी। खैर, ये तो वो है। अभी तो कई ऐसे ऐसे हो गए कि ऑपरेशन होने वाला था, अभी इसी महीने का ही किस्सा है।
तो 3 दिन बाकी थे, मैंने कहा आप 17:45 लोग कीजिए, और गए और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कई किस्से चमत्कार होते ही जा रहे हैं। देयर इज वंडर, मतलब एक एक ने मेरे जो अभी सीखे ट्रेनिंग ली, अभी इसी महीने की बात कर रहा हूँ मैं, अगस्त की, उन्होंने 4-4, 5-5 केस हल कर लिए, क्योंकि मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं मास्टर बनाता हूँ, बस इतना सी फर्क है मेरा। और ये देव गुरु धर्म की कृपा है, मंजू जी अच्छी साथी मिली हैं, और सबको मैं तो जो इस लाइन में उन सबको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो खूब करें, ये काम अच्छे से करें और उनके काम अच्छे हों। रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। मैं मेरे लिए कम तो क्या, मेरे लिए तो करता ही नहीं, एक तरह से अगर सही कहूँ तो मैं उन सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जो ये काम कर रहे हैं, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। खैर ऐसे बहुत किस्से होते जा रहे हैं। एक लड़की बोल नहीं सकती थी, जिसको डॉक्टर ने कहा, और वो गूंगी बहरी, 6ठा श्लोक और 45 करने के बाद वो बोलने भी लगी, सुनने भी लगी। तो ऐसे तो चमत्कार बहुत हो गए। बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे हो गए, शादियां नहीं हो रही, शादी हो गई। खैर मैं भक्तामर के साथ कभी कभी थोड़ा बहुत और भी जोड़ देता हूँ, वास्तु वगैरह जो भगवान ने ज्ञान दिया है। ऐसी करीब 20 शिक्षाएं ली है अलग अलग, और बस उसके बाद कुछ न कुछ जोड़ देता हूँ भक्तामर के साथ। और ये आप सबका प्रेम है जो कभी कभी मुझे याद कर लेते हैं। बस ये प्रेम बनाए रखिए, और क्या क्या कहूँ मैं, आप सब सुख रहे, प्रसन्न रहे, खूब तरक्की करें। मंजू जी आपको तो विशेष आशीर्वाद मैं देता ही रहता हूँ, ठीक है। मंजू दीदी का 7वां आज फास्टिंग है, दिव्या निर्जल फास्टिंग कर रही है। और बताइए कितने सेशन सुबह से शाम तक अटेंड करती रहती, मैं तो समझ नहीं पाती दीदी को इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। ये एनर्जी आती है भक्तामर से। इसका मंजू जी पहले आप सुख साता में होंगे, आपके सुख साता की मैं देवगुरु धर्म से प्रार्थना करता हूँ। और ये जो मैंने कहा ना, ये एनर्जी कहाँ से, हाँ वंदन आपको, बहुत बढ़िया, आप सामने आ गए। आप ऐसे ही मंजू जी, आप ऐसे ही साड़ी में आया कीजिए, अच्छी लगती है। अच्छा, तो अब लीजिएगा मधु जैन 62 एट आउटलुक, जी और फिर दीदी। सुमन कोठारी जी हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनको भी लेंगे। हाँ जी दीदी। हाँ, मधु जैन मधु जी आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है आपको। सादर जय जिनेन्द्र। सभी को, साधु आत्माओं को मेरा वंदन। आचार्य श्री महाश्रमण जी जो हैदराबाद में विराजित हैं, उनको वंदना करती हूँ। मंजू जी जो इतनी तपस्या में रत है, उनको बहुत बहुत साधुवाद और तपस्या की अनुमोदना में कर रहे हैं। लगभग 4 साल से मैं इस भक्तामर हीलिंग से जुड़ी हुई हूँ, और सहज ही मंजू जी को देख के मुझे लगा कि भक्तामर करते थे बरसों से, वो बात अलग है। मंजू जी के जब सिद्धायतन में फर्स्ट प्रोग्राम देखा 4 साल पहले, तो मन में लगा कि हमें भी करना है, और मैंने मंजू जी को फॉलो किया। वहाँ 4 दिन मैंने मंजू जी को फॉलो किया, और मंजू जी ने उस टाइम एक बात कही थी अनायास कि मधु जी आप यहाँ कुछ डिफरेंट हो। मैंने सहज ही लिया, मंजू जी ऐसे बोला नहीं आप डिफरेंट हो। तो मैंने जब सोचा कि उन्होंने जब बात बता रहे थे लोगों को कि नमक छोड़ो, नमक छोड़ के करना, लोग कह रहे हैं मंजू जी नमक ही क्यों, कुछ और भी तो छोड़ सकते हैं। मंजू जी बोला क्यों, नमक क्यों नहीं छोड़ सकते, छोड़ो नमक छोड़ो। मैंने ये सब बातें सुनी, और मैं वहां से सिद्धायतन से आते ही कलकत्ता, मैंने दूसरे दिन से ही नमक का त्याग किया 21 दिन का, और मैं साधना में लग गई। मैंने श्लोकों का इतना बढ़िया वाचन किया, गहराई से चीजों को समझा, और हीलिंग मुझे समझने में देर नहीं लगी, इसलिए क्योंकि मैं ध्यान में 20 साल से लगी हुई हूँ। अध्यात्म साधना केंद्र माउंट आबू में मैं ध्यान करने प्राय साल में 3-4 बार जाती हूँ। अब देखिए केस स्टडी में एक बहुत केस स्टडीज है। लिवर कैंसर साध्वी श्री जी का 11 दिन में पूरा खत्म, पूरा वेलव्यू में चेकअप हुआ, बोले आपके कोई चीज है ही नहीं, पूरी तरह आप ठीक हो। देखिए वो साधु आदमी है, चारित्र आत्माएं हैं, उनकी ऊर्जा अलग होती है।
अब भी मंजू जी ने 7-8 दिन पहले मुझे एक केस दिया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके मिलवाया, विजय जी, जो लिवर कैंसर लगभग 4th स्टेज, उनको मैंने 3 हीलिंग दी। देने के बाद उनको मैंने पूछा कैसे लग रहा है, बोले मेरे को दर्द आधा हो गया, मेरे लिवर का दर्द आधा हो गया। मैंने बोला, कल पूछा मैंने कैसे है, बोला पेट के नीचे थोड़ा दर्द था लेकिन उसमें भी मुझे आराम मिल गया। पेट जो पानी कलकल 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 करता था हमेशा, बोला थोड़ा शांत हो गया। क्या 9 दिन में व्यक्ति इतना ठीक हो सकता है? तो वो खत्म नहीं होएगी कैंसर, 100% होएगी, क्योंकि हमारी शक्ति जो उसके साथ में जुड़ रही है। कैंसर को निष्क्रिय होने में वक्त नहीं लगेगा। हम तो अपनी भावधारा कितनी जोड़ पा रहे हैं उसके साथ, देखने वाली बात सिर्फ और सिर्फ वही है। मैंने अभी भी महीना भर पहले एक पेशेंट को बताया था कि तुम्हारा जो ट्यूमर है, उसको पाँव का ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन उस टाइम हुआ नहीं था, उसमें ट्यूमर था जॉइंट में, हिप जॉइंट में। मैंने कहा लगभग 8 सेंटीमीटर का तुम्हारा ट्यूमर है। आश्चर्य की बात ये कोई देव शक्ति में नहीं कह सकती, वो भी एक विजन ही है। डॉक्टर का जब MRI रिपोर्ट आया, 8 सेंटीमीटर का ही ट्यूमर था। जब हीलिंग हुई 1 महीने, मैंने कहा अब जो MRI हो रही है, देखना तुम्हारा ट्यूमर सिर्फ 2 सेंटीमीटर का रहेगा। 2.25 सेंटीमीटर का ही ट्यूमर उसका निकला। ये मिरेकल नहीं कहेंगे, ये है भक्ति का प्रभाव। भक्तामर मतलब ही भक्ति है। भक्ति में जब तक भक्ति का स्रोत फूटता है, सब कुछ पॉसिबल है। मैं इतना ही कहूंगी, हर सब काम हम कर सकते हैं। भक्तामर में जितना पावर है, एक एक अक्षर मंत्र है, एक एक अक्षर, एक एक वर्ड नहीं, एक एक अक्षर जिसकी हम उच्चारण कर रहे हैं तो एक झंकार उठती है, और वो ही चीज पेशेंट को ठीक करती है। और मैं तो इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे लगता ही नहीं है, मैं डाउट नहीं करती हूँ। भाई ये लिवर का पेशेंट आया है 4th स्टेज, क्या होगा? मैं तो कहती हूँ ठीक होएगा। कैसे नहीं होएगा? ठीक होना ही है। मन की शक्ति मजबूत, सामने वाले को मजबूत कर दो कि जो है मैंने भक्तांबर में लीन होना है और आदिनाथ को सुदृढ़ कर दिया है अपने आप को। कैसे नहीं ठीक होगा? ठीक होगा, होगा, होगा। मन का दृढ़ विश्वास, संकल्प ही व्यक्ति को ठीक करता है, वही एक ऊर्जा पैदा करता है। और मैं तो आदिनाथ भगवान के प्रति कृतज्ञ हूँ। मंजू दीदी, जिनका तो मैं आभार जीवन भर व्यक्त करती ही रहूंगी, जिन्होंने इस लाइन में मुझे बहुत गहराई में लेके गए। ओम हरम, ओम हरम। थैंक यू मधु जी। जब मधु जी मुझे सरप्राइज दी थी कोलकाता लेके, जब ये अपने फ्लैट पे लेके गई थी, तो ऑलरेडी 35 लेडीज थी और वो बिना नमक का खाना खा रही थी। उनमें से 7 और एक ऑक्सीजन पे लेडी थी, जिसको मंत्र सुना के उसकी ऑक्सीजन पहले 8 घंटे से 6 घंटे हुई, फिर 3 घंटे हुई। ऐसे करके इन्होंने बहुत लोगों पे काम किया। और फिर ये नागपुर आई, ट्रेनिंग ली, और जब मैं ये दूसरी बार मुझे अपने नए फ्लैट पे ले गई, इतनी बड़ी सोसाइटी में इनका नया फ्लैट बन गया, और बोलती मंजू जी आप मेरे घर आए, और उसी दिन मेरा इतना बड़ा टेंडर आया। ये जूट बैग्स बनाती हैं, बोले एक बैग भर के तो बैग भेजे के आप आए और मुझे इतना बड़ा टेंडर मिला। तो ऐसे मधु जी को बहुत बहुत अनुमोदना। अब सुमन कोठारी जी को लेंगे। जी दीदी। जय जिनेंद्र दीदी, जय कैसे आपके सुख साता? हाँ बिल्कुल बढ़िया है। और फिर रूपाली जी भी हैं हमारे साथ। कमावत आपके ठीक है दीदी? हाँ एकदम ठीक हूँ। स्पॉटलाइट पे ले लो सुमन जी को। ये दीदी इनका वीडियो ऑन नहीं है। चालू था। हाँ अभी ऑन किया, मैं लेती हूँ। हाँ दीदी। हाँ, सुमन जी बताइए, आपने भी तो कई पेशेंट के लिए जगह जगह आप जाती हो, जहाँ हमारा प्रोग्राम होता है दौड़ते हुए आते हो, और इसको हील कर दो, उसको हील कर दो, बताइए। मैंने तो
हाँ दीदी, मैंने तो अपने घर में भी देखा है कि बहुत सबकी पॉजिटिव चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने इतने लोगों को पढ़ा है, वो मेरे को इतना फोन करते हैं, सुमन तुमने नई दुनिया दिखा दी, नई दुनिया दिखा दी। बहुत लोग जुड़े हैं, नेपाल के पूरे ऑलमोस्ट काफी लोग जुड़े हैं दीदी। और वो लोग का फोन भी बहुत आ रहा है मेरे पास में। और सबसे बड़ी बात है, मेरा घर पूरा पॉजिटिव हो जी रहता है, एक आदि का नाम रहता है। और पता नहीं मैं आगे कितनी बढ़ूंगी, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ हो नहीं हो, घर का माहौल और घर का जो वाइब्रेशन है वो 100% ठीक होता है। क्योंकि मेरे साथ में ये चीज हुई है। जो मेरे हस्बैंड मेरे को दिन भर वो भी भक्ता में गुनगुनाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनका जहाँ भी बिजनेस में काम करते हैं तो उनका सब अच्छा ही होता जा रहा है। तो मेरे को और ज्यादा बोलते, तुम रोज भक्तांबर करो, तुमको किचन में नहीं जाना है, तुमको ये नहीं करना है, तुम दिन भर भक्तांबर करती रहो। क्योंकि उनका भी मेरे घर में पढ़ने से उनका भी बहुत सारा फायदा होता जा रहा है, बिजनेस पर्पज भी। तो ये क्या दीदी ने बहुत बार बोला कि इसका साइड इफेक्ट होता है, तो ये साइड इफेक्ट मैं देख रही हूँ कि मैं घर में पढ़ रही हूँ, बिजनेस में साइड इफेक्ट होता जा रहा है। तो दीदी बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी सुख साता हो, मैं यही भगवान से कामना करती हूँ, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। आपका हाथ सर पे रहना चाहिए हमारे। देखो ये सुमन जी अपने बॉम्बे की हमारी क्लास थी, उसमें ये आई और मैं देख रही थी कि उनका बेटा बोल रहा था कि कैमरा से क्यों ले रहे हो, उसको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था और उसको कोविड जैसे बुखार और ये सब आ रहा था और हम सब ने उसके लिए हीलिंग दी और वो ठीक हो गई। फिर ये दूसरे किसी कोई क्रिटिकल था, वेंटिलेटर पे था, ये हमारे रायपुर की क्लास में ढूंढते ढांढते गई और उधर इनने बोला, सबने चैंटिंग करी और वो ठीक गया। कहाँ से तो लिंक लेके बोले हम ढूंढ ढांढ के आए हैं। तो ऐसे इनकी दीदी बहुत अनुमोदन। उसका दीदी चमत्कार तो मैं बता नहीं सकती हूँ। वो रायपुर वाले में जो चमत्कार है वो ठीक है। तो मैं बोले ऐसे कैसे हो सकता? 1 घंटा पहले बोले ठीक नहीं रहे, 1 घंटा बाद में कैसे फोन आया? मैं तुरंत रायपुर वाले में क्लिक करी और आप दीदी आप तो चले गए। तो मैंने वापस उनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि देखिए आप लोगों ने इतना अच्छा सा भक्तान में हीलिंग करे हैं, वो जो पेशेंट था 1 घंटा बाद में मेरे को पता चला है कि वो पेशेंट एकदम ठीक है, नॉर्मल है। बोले 1 घंटा में जो जादू की जो छड़ी होती है ना, तो बोले ना फूकते हैं, वो वाली कंडीशन उस दिन मैंने देखी है कि 1 घंटा पहले बहुत क्रिटिकल था और वेंटिलेटर में चला गया आदमी, वो 1 घंटा बाद में वो कैसे बाहर आ सकता है? उसके 165 लोग हीलिंग दिए थे, 165 लोग हीलिंग दिए थे उस टाइम। मेरा खातिर बोलूं मैं। थैंक यू। अभी दीदी सबसे बड़ी बात है, दीदी सबसे बड़ी बात है, उस दिन मेरे बेटा ने बोला कि ये सब मत करो, ये सब मेरे को पसंद नहीं है, ये नहीं है। मेरे को मम्मी से 8 पढ़ते करना कोई टाइम में कैसे दीदी मम्मी वो बात को बिल्कुल विश्वास नहीं था। दीदी ने इतना अच्छा से उसको किया, और आज वो उसको कोविड भी नहीं हुआ, एक दिन बुखार हुआ, दूसरे दिन बुखार भी नहीं हुआ, और मेरे को टेस्टिंग भी नहीं करानी पड़ी, कुछ भी नहीं कराना पड़ा, ना मेडिसिन में। मतलब वो एंटीबायोटिक दे दिए दीदी, उसे विटामिन सी भी दे दिए, और जो सब कुछ जो देना था दीदी उस मंत्र में दे दिया। और मेरे बेटे को सेकेंड डे बुखार। थैंक यू। हमारे बीच में आईफोन पे नेवी ब्लू उसको इतना मन लगा कि मम्मी खाली अब दिन भर भक्तांबर करते रहो, वो हैंड रेस कर रहे रूम से बाहर। हाँ 1 मिनट में लेती हूँ। थैंक यू सुमन जी। अभी दीदी मैंने एक जन को बोला है, अभी इनको एक जन है उनको बहुत प्रॉब्लम है दीदी, मैंने अभी एक जन को हैंड रेस करने के लिए बोला है कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा अभी यहाँ पे आईफोन पे है, वो नेवी ब्लू टी शर्ट में चश्मा लगाए हैं, हैंड रेस करे हैं, आईफोन के नाम से, नाम नहीं है। दिख गया। ये विवेक जैन है। ये भैया आप अनम्यूट कर लीजिए। ये कलकत्ता की विवेक जैन है दीदी। वंदना मंजू जी। वंदना। हाँ जी बोलिए। मैं है रिमोट है और लास्ट 1.25 साल और
मतलब स्टेरॉइड डेली लेना पड़ रहा है मेरे को, मतलब पूरे शरीर में हर जगह जॉइंट्स में पेन रहता है। और अभी वैसे तकलीफ मेरे पेन का खराब हो जाएगी 20-25 मिट्टी में खराब हो जाती है। बाकी लोग म्यूट कर लें अपने आप को, बाकी लोग स्वयं कर लें अपने आप को। मैं कर देती हूँ सबको। वैसे लास्ट 20-25 साल से पेन नेक में रहता है, उसका बहुत जगह एमआरआई करा लिया, हर जगह ट्रीटमेंट करा, कोई उसका हुआ नहीं। लेकिन लास्ट 1.5 साल से मेरे रेमेटॉइड आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ था, तो मैं उसके लिए फिर सिंगापुर भी गया था ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पे वो एक ही दवाई है उन लोग का, मेथोट्रेक्सेट और स्टेरॉइड दिया मेरे को। तो लास्ट 1 साल से मैं मेथोट्रेक्सेट और ये स्टेरॉइड ले रहा हूँ। लास्ट 4 महीना से मेथोट्रेक्सेट जो मेडिसिन, इसका मेन मेडिसिन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसको मैंने बंद करके आयुर्वेद चालू किया है। आयुर्वेद से थोड़ा बेटर है, लेकिन स्टेरॉइड अभी भी डेली लेना पड़ता है, और शरीर में तकलीफ तो आज भी बहुत है। तो सुमन जी से मेरा अच्छा संपर्क है, तो उन्होंने कहा आज ही तुरंत बोले अभी आप इसमें ज्वाइन करो और इनसे बात करो। आपको मधु जी हीलिंग देंगी, मधु जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। और मैं बता रही कि सिंगापुर में एक लड़की थी, भरत तातिया है मद्रास के, उनकी बहन को कैंसर था 4th स्टेज का, और पता नहीं उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। अचानक हमारा भी सिंगापुर जाने का प्रोग्राम हुआ, और मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि हर बार यूरोप जाते हैं, इस बार सिंगापुर क्यों ले लिया, एशियन कंट्री। बोले नहीं, बाकी फ्रेंड्स नहीं गए, उनको देखना। और मैं गई हूँ, जो ऑर्किड होटल में रुकी और पहुंची, और वो लड़का वहीं पहुंच गया कि मैं अपनी बहन को लेके आ गया हूँ यहाँ। और 7 दिन तक मैं उसको हीलिंग देती रही, जैसे वो प्रोग्राम सिंगापुर का, उसको हीलिंग देने को वहां पे ट्री टॉप अपार्टमेंट उन्होंने ले लिया था। बोले हम तो इसी होटल में रुके थे दीदी, कल रात में ही अपार्टमेंट लिया क्योंकि इसका ट्रीटमेंट चलेगा। रजनीकांत का भी वहीं पे चल रहा था ट्रीटमेंट, वो हर बार कहते थे रजनीकांत की फाइल और इसके साथ। और मैंने जब उसको 7 दिन दिया, तो वो 7वें दिन होटल आ गई वो लड़की बोलने कि आप जो देते हो मुझे वो एनर्जी फील होती, चेंजेस। और वो 4 साल तक ठीक रही। और उन्होंने उसके आने के बाद प्रोग्राम किया, मद्रास में मुझे बुलाया था। भरत तातिया जी, जिसकी खुद की बैंगलोर में 300 एकड़ होसूर में जगह है, जो कहता भक्तांबर का पूरा टेम्पल बनाएंगे दीदी। वो लोग श्वेतांबर आचार्य महाश्रमण जी के ही भक्त हैं, उनकी मम्मी चंदा जी। तो अब मैं चाहूंगी कि रूपाली जी, आप रूपाली कारनावत को अनम्यूट करें, वो सुनाएंगी क्या श्लोक? रूपाली जी आप सुना दोगे इनके लिए? अनम्यूट करते हैं दीदी। और आशा बेदी जी, तो फिर बस उसके साथ क्लोज करेंगे सेशन 3 बजे, क्योंकि हमारा सेशन होता है दूसरा। और अभिषेक जी आप, थैंक यू, आप अपने आप को भी अनम्यूट कर लें। आई होप कि सब लोगों को अच्छा लगा। कल अमरीश मेहता जी आएंगे तो पूरे 48 श्लोका कवर करेंगे, किस श्लोक से क्या होता है। और स्टार्टिंग में मैं आपको पूरी 6वें श्लोक पे जो रिसर्च है वो दिखाऊंगी। हाँ रूपाली जी बोलिए। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। दीदी आपके हीलिंग से मेरा शुगर भी बहुत नॉर्मल आ रहा है अभी। अच्छा। जो 350-400 रहता था वो 200 to 30 तक हो रहा पोस्ट लंच। और फास्टिंग का भी बिलो 100 आ रहा है अभी, जो 140-180 ऐसा रहता था। तो अभी वो हीलिंग से भी मुझे बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो सुना दीजिए, कौन सा श्लोक पढ़ती हैं, जरा सुना दीजिए। अभी श्लोक तो मैं वो उद्भूत का पहले तो फर्स्ट श्लोक बोल देती हूँ दीदी। वक्तामरा प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुख्योदकं परित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततांजनानाम्। ये तो फर्स्ट बोल के मैं वो 45 वाला ज्यादा बोलती हूँ दीदी। हाँ सुना दीजिए। उद्भूत भीषण जलोदर भार पूर्णा सोचाम दशा गता श्रुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीक्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ये ज्यादा बोलती हूँ मैं।
45 वाला। थैंक यू। और अलका गांधी जी, कुछ आशा बोलना बेदी को चाहेंगे? दीदी लेना है, आशा बेदी। अच्छा, ले लीजिएगा। फिर अलका गांधी कुछ बोलना चाह रही, उनका हैंड रेज्ड है। जी और जी। हाँ, आशा जी बोलिए। नमस्कार मंजू दीदी। भक्तांबर को यूं तो हम लोग बचपन से जानते हैं, लेकिन आपसे मिलने के बाद जो जाना है, शायद वो अब जीवन भर की अमूल्य औषधि बन गई है। पूरी श्रद्धा से हम लोग इसके साथ जुड़े हैं और इसके मैंने भी बहुत अनुभव किए हैं। वक्त आने पर इत्मीनान से बताऊंगी, लेकिन अभी जो मैं खुद में मैं फील कर रही हूँ, मेरे पैरों में तकलीफ होती थी और आपने जो बताया था 14 नंबर का श्लोक, तो पहले मैं पहले नंबर का श्लोक पढ़ती हूँ, उसके बाद 14 नंबर का पढ़ती हूँ, आपको सुनाना चाहूंगी। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुक्ला गुणास्ति भुवनम सबलंघयन् ये संस्थिता जगदीश्वर नाथ में कम कस्तानि वारयति संचरतो यथेष्टम् ऋति ओम ह्रीं ह्रं नमो व्युल्मिगणं जौं झौं नमः स्वाहा मंत्र ओम नमो भगवते गुणवते महामानसी स्वाहा। मंजू दीदी, आपका आशीर्वाद बना रहे बस। थैंक यू आशा जी। और बस अलका जी को ले ले। जी 2 मिनट अलका जी का हैंड रेज। अलका जी आगे दीदी। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए दीदी। हाँ मंजू दीदी। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र मंजू दीदी। जय जिनेन्द्र बोलिए। हाँ, तब से आपके साथ है मंजू दीदी। हाँ, साथ में। हाँ, मैं आपके तपस्या के ऊपर एक गीत गाना चाहती हूँ। बोलिए। बोलू ना? हाँ बोलिए। बिल्कुल बोलिए। ऐसी चुंदड़ मांगे मंजू बेन आज, ऐसी चुंदड़ मांगे मंजू बेन आज को जिसे ओढ़क होवे उनको, हो जिसे ओढ़क होवे उनको पल भर में केवल ज्ञान, ऐसी चुंदड़ मांगे मंजू बेन आज। कोई वीर देगा महावीर देगा, कोई वीर देगा महावीर देगा। सामायिक की झालर तुम चारों ओर लगाना, आठाई के हीरे मोती उसमें खूब सजाना। ऐसी चम चम करती चुंदड़, ऐसी हीरो वाली चुंदड़ मांगे मंजू बेन आज, ऐसी चुंदड़ मांगे मंजू बेन आज। कोई वीर देगा महावीर देगा, कोई वीर देगा महावीर देगा। भक्तामर के बूटे तुम चुंदड़ में लगाना, महामंत्र के 68 अक्षर चुंदड़ में बिखेरना। ऐसी चम चम करती चुंदड़, ऐसी पावनकारी चुंदड़, हो ऐसी हीरो वाली चुंदड़ मांगे मंजू बेन आज, ऐसी चुंदड़ मांगे मंजू बेन आज। जय जिनेन्द्र मंजू दीदी। थैंक यू। कहाँ से अलका जी? पुणे में, नासिक की हूँ मगर पुणे में रहने को आई हूँ। अच्छा। हाँ, अभी मेरा एक सवाल है मंजू दीदी। मेरे फ्लैट वाला जो है ना, क्या बोलते उसको, फ्लैट बुक किया था मैंने। हाँ। हेलो। तो हाँ, तो बिल्डर के पास पैसे अटके 22 लाख रुपए। 1, 4 और 8 करो। हाँ। 1, 4 और 8 21 दिन, जब वो पूरा हो जाएगा। हाँ। फिर बाद में बताऊंगी, पहले 1, 4, 8 चलेगा। चलिए अभिषेक। हाँ बोलो। अभिषेक जी अब क्लोज करेंगे सेशन। अभिषेक जी। हाँ जी।
थैंक यू दीदी। दीदी बस एक कल के प्रोग्राम का कल कैसा रहेगा? आपने बताया कल 48 श्लोक्स का पूरा वॉक थ्रू करेंगे। कौन पहले शुरू में 6वें श्लोक का रिसर्च दिखाऊंगी कि 6वें श्लोक से कैसे मंदबुद्धि बच्चे, नॉर्मल बच्चों का आईक्यू कैसे वो एक्सेल करे हैं, उनका वो रिसर्च दिखाऊंगी पहले 15 मिनट में। फिर 1:45 से अमरीश मेहता जी 1 से 48 श्लोक लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे लोग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, क्वेश्चन आंसर, तो वही 1:30 से 3 बजे तक अपन ले लेंगे। ठीक है। और दीदी एक और पॉइंट, तो अभी जैसे कोविड का थोड़ा चल रहा है, सभी भयभीत है इस बीमारी से, तो आप यदि कल 2-5 मिनट उस पे ले ले कोविड पे स्पेसिफिकली। हाँ, चैंटिंग कराएंगे, चैंटिंग करेंगे, किसी को ले लेंगे तो ठीक है। ठीक है, अच्छा जी। चलिए हम एक बार फिर से मंजू दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। अभी बस 50% हुआ है, आगे के और 50% हम लोग कल ले लेंगे। सभी को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मंजू दीदी एक बार और। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सिद्धायतन के प्रोग्राम में आ जाएं सब लोग। जय जिनेन्द्र दीदी, आपके शुभ साथ आ रहे हैं, आप अच्छा सर। हाँ जी। दीदी ये कंटिन्यू करना है यही इस पे, मैं लॉग ऑफ कर जाऊं? नहीं, इस पे नहीं होगा, वो दूसरे पे होगा, हम सब निकल जाएंगे। ठीक है, इसमें लॉग ऑफ। ये लिंक से आपके साथ कल रहेंगे अपन ठीक 1:30 बजे। और आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, जो पीपीटीज हैं वो सबको भेज दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है। अभिषेक भैया एक रिक्वेस्ट है, मैंने यहाँ पे नंबर अपना डाल दिया है, तो जो भी टेक्निकल हेल्प के लिए रेडी है करने के लिए, तो प्लीज मेरे से आप कनेक्ट करा दीजिएगा उनको। और मैं ट्राई करूंगी आज एक पोस्टर भी बना के भेज दूंगी, सो दैट अगर किसी को आपको ग्रुप में भी, जैसे आप बता रहे थे 150 लोग का ग्रुप है, हाँ, अगर उसमें आप फॉरवर्ड करना चाहे तो वो भी कर सकते भैया। बिल्कुल बिल्कुल। आप थैंक यू सो। हाँ भैया, आप मुझे वो पोस्टर भेज दीजिएगा, मैं वो पोस्टर भी आगे इसको सर्कुलेट कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं आजकल में 1 दिन में रेडी करके आपको भेज दूंगा। फिलहाल कोई अगर बोले तो प्लीज कनेक्ट करवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को दीदी। हाँ चलिए, बीइंग अ होस्ट। हाँ।